Hello everyone, welcome to English with Lakshmi. Friends, in this video we are going to cover line by line explanation of the very first chapter, A Letter to God, from First Flight class 10th. So, this chapter's writer is Z.L. Fuentes. In this chapter, Lancho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. Asking for 100 paisas, does Lancho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. You know, बिफोर यू रीड में कुछ दिया हुआ है. ये कह रहा है कि लैंचो क्या है, एक फार्मर है और वो गॉड को लेटर राइट करता है क्योंकि उसकी जो क्रॉप्स होती है ना, तो वो बारिश की वजह से वो क्रॉप्स उसकी ख़राब हो जाती हैं. तो वो गॉड को लेटर लिखता है कि गॉड, मेरा इस साल फसल बहुत ख़राब हो गया है और मुझे 100 पैसे की ज़रूरत है. तो क्या गॉड उसको पैसे भेजते हैं? और ये लैंचो के ट्रस्ट की बात की गई है इस चैप्टर में कि वो दिखाता है कि लैंचो को इतना भरोसा होता है गॉड पे कि इस साल फसल ख़राब हो गई है, अगर कोई मुझे बचा सकता है तो वो बस गॉड ही बचा सकते हैं. तो वो लेटर लिखता है. तो क्या उसको पैसे मिलते हैं और वो पैसे कौन सेंड करता है? चलिए आगे के चैप्टर्स में देखते हैं. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The house was situated on the top of the hill. The hill was not very high. It was the only house in that area. From the house, one could see the river and the field of ripe corn. The field had flowers of corn also. It was an indication that crop was good this time. जो हाउस था वो सिचुएटेड था टॉप ऑफ द हिल, मतलब पहाड़ी के ऊपर वो हिल सिचुएटेड था और वो जो हिल था ना वो बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं था. उस एरिया का वो सिंगल ही घर था और उस घर से कोई भी चारों तरफ देख सकता था कि चारों तरफ एकदम हरियाली और चारों तरफ क्रॉप्स हैं, जो पके हुए अनाज हैं. जो फील्ड था ना, ये क्रॉप्स का खेत जो था वो पूरा ये फ्लावर से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था, मतलब ये इंडिकेशन ही था कि बहुत अच्छी फसल दिख रही थी कि इस साल बहुत अच्छा फसल होने वाला है. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout morning, Lancho, he knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. The earth needed rain or at least a small amount of rain for a good crop. Lancho, the owner of the fields, he knew everything about his field. Since morning, Lancho had been looking at the sky in the northeast direction. फसल बहुत अच्छी दिख रही थी, फ्लावर्स लगे हुए थे, तो बस उन फ्लावर्स को, उन पौधों को बस एक स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन की ज़रूरत थी, थोड़ी कम बारिश की ज़रूरत थी. लेंचो वो जो फील्ड्स थे उनका ऑनर था, वो अपने फील्ड्स को ना बहुत अच्छे से जानता था, अपने खेतों के बारे में हर एक चीज़ उसको पता थी. तो क्या था, उस दिन वो सुबह से ही नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन था उधर देख रहा था, यानी कि उसको कहीं ना कहीं अंदाज़ा था कि बारिश हो सकती है, क्योंकि उसको पता था उसके खेतों को बारिश की अब ज़रूरत है. तो वो सोच रहा था कि बारिश आ जाए और उस डायरेक्शन में वो देख रहा था. Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, yes, good, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. Lancho tells to a woman, who was his wife of course, that now they will surely get some grains. The woman replied that by the God grace of, it would surely happen. The woman was preparing dinner. The elder boys were working in the field. Younger boys were playing near the house. The woman called them for dinner and all of them came to the house. लेंचो अपनी वाइफ से कहता है कि श्योरली, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा होता है, फील्ड्स को भी बहुत अच्छे से जानता है और इतने दिन में उसको वेदर वगैरह का भी काफ़ी मतलब समझ होती है उसको.
तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि हम डेफिनेटली बारिश होने वाली है। तो उसकी वाइफ कहती है कि हाँ ऐसा ज़रूर होगा, भगवान की कृपा से ऐसा होगा ज़रूर। और वो वुमेन क्या कर रही होती है, डिनर प्रिपेयर कर रही होती है। और उसके जो बड़े बच्चे होते हैं ना, जो एल्डर बॉयज़ होते हैं, तो वो फील्ड में वर्क कर रहे होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं घर के आसपास में खेल रहे होते हैं। तो सारे लोगों को कहती है कि सारे लोग आओ डिनर के लिए। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of cloud could be seen approaching. The air was fresh and sweet. While they were having food, the big drops of rain started falling. This was exactly as predicted by Lencho. One could see large numbers of big clouds coming from northeast direction. The air was fresh and its smell was very nice. जब ये उसकी वाइफ फूड प्रिपेयर कर रही थी और सारे लोग उसके बाद से जैसे डिनर के लिए जब लेंचो की वाइफ बुलाती हैं, सारे लोग जब फूड मतलब खाना खा रहे थे, डिनर कर रहे थे, तो क्या होता है बिग बिग ड्रॉप जो होते हैं रेन के वो गिरने लगते हैं। यानी कि बारिश की जो बड़ी बड़ी बूंदें होती है तो बारिश होने लगती है। और एग्जैक्टली जैसे कि लेंचो प्रिडिक्ट किया रहता है कि डेफिनेटली आज बारिश होने वाली है, तो वैसा ही होता है। कोई भी देख सकता था कि ये बहुत ज़्यादा बादल नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे थे, यानी कि बादल लग रहे थे। जो एयर थी वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश थी और जो स्मेल था ना वो बहुत ही अच्छा था। आप लोग ऐसा फील किए होंगे कि जब बहुत बादल लग जाते हैं गर्मी के बाद और वो जब बारिश जस्ट आने से पहले या फिर बारिश की जब बूंदें ज़मीन पे पड़ती हैं तो वो बहुत अच्छी स्मेल होती है उसकी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s." Lencho went outside to feel joy of rain falling on his body. He returned and spoke with lot of happiness. These are not the drops of water. They are the new coins. The big drops are 10-cent coins and small drops are 5-cent coins. लेंचो जब देखता है कि बारिश आ रही है तो बस वो बाहर बारिश को फील करने के लिए जाता है, वो खुशी फील करने के लिए जाता है कि बारिश की बूंदें उसकी बॉडी पे पड़े। और जब वो आता है ना तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश रहता है और कहता है कि ये बारिश नहीं हो रही है, ये बस बारिश की बूंदें नहीं है, ये कॉइन बरस रहा है। जो बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट वाले कॉइन हैं और जो छोटे ड्रॉप्स हैं बारिश की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट कॉइन्स हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. He was very much satisfied to look at his field of ripe corn and flowers. These were covered by rain falling on the field. Suddenly, speed of wind increased, and along with rains, hailstones started falling. These were of white color and were shining like new silver coins. The boys went outside into the rain to collect hailstone. The hailstone looked like pearls. जब ये जो लेंचो है वो फील्ड में जब मतलब बाहर निकलता है, बारिश को फील करता है, आता है, कहता है, उनका कंपेयर पैसे से करता है। फिर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वो सेटिस्फाई होता है अपने फ्लावर्स को देख के, जो उसके कॉर्न, उसका जो फसल रहती है उसमें जो फ्लावर्स वगैरह रहते हैं, तो वो सोचता है बस बारिश की ज़रूरत थी, बारिश भी आ गई, तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होता है। और क्या होता है कि मतलब ये बारिश तो हो ही रही थी, सडनली क्या होता है विंड की जो स्पीड होती है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। और आप लोगों को पता है जब बहुत ज़्यादा बारिश पूरा नमी नमी हो गया रहता है, अगर उसमें हवा चल जाए तो सारी फसल गिर जाती हैं। तो अभी तो हवा की स्पीड इंक्रीज हुई और उसी के साथ ना ये स्टोन पत्थर वगैरह भी पड़ने लगे, वाइट कलर के जो पड़ते हैं, तो आप लोग देखे होंगे। तो ये वाइट कलर के ऐसे थे जैसे कि सिल्वर कॉइन गिर रहे हों। तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत खुश हो जाते हैं, जाते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए। ये क्योंकि वो जो हेल स्टोन्स है ना तो वो पर्ल्स, मोती की तरह दिख भी रहे होते हैं, तो बच्चे जाते हैं एक्साइटेड होकर उसको कलेक्ट करने के लिए।
It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. I did not but it did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. Lancho spoke with sadness that the rains with hailstone is bad for the crop. He wished that it stopped very soon, but it did not stop quickly. It rained hailstone for 1 hour. It rained everywhere. The field had become white as if salt had been spread on the field. अब जब पहले तो बारिश हो रही थी, लंचो को बड़ा अच्छा लगा. फिर उसके बाद विंड की स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई और हेल स्टोन पड़ने लगे. अब जब हेल स्टोन लंचो देखता है तो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है. वो कहता है कि आई होप ये जल्दी मतलब बंद हो जाए, क्योंकि ये क्रॉप जो है ना उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत बैड है क्रॉप्स के लिए. वो सोचता है कि जल्दी से ये स्टॉप हो जाए ताकि कुछ क्रॉप्स बच जाए, लेकिन वो जल्दी से स्टॉप नहीं होता है. हेल स्टोन होते मतलब गिरते रहता है. और जो बारिश है ना, तो मतलब लगभग ये हेल स्टोन वाली बारिश लगभग 1 घंटे तक होती है और चारों तरफ मतलब होती है, चाहे वो वैली थी चाहे वो क्रॉप था, मतलब चारों तरफ पूरा होल वैली को वो कवर कर लेता है. ऐसे लगता है कि सारे फील्ड में जैसे साल्ट पूरा गिरा दिया जाए, सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, तो वैसे ही पूरा फील्ड एकदम वाइट हो जाता है स्टोन से. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. Every leaf from the trees has fallen on ground. All the corn was completely destroyed. All the flowers had fallen on the ground. Lencho was now full of sadness. जब इतने 1 घंटे तक जो हेलस्टोन वाली रेन हुई है, बारिश हुई है, तो कुछ भी नहीं बचता. जितने ट्री होते हैं ना, उनके जो भी पत्ते होते हैं सारे वो गिर चुके होते हैं ग्राउंड पे. जो कॉर्न होता है, जो फसल होती है, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है. जो फ्लावर वगैरह होते हैं वो सभी ग्राउंड पे गिर चुके होते हैं. अब जो लैंचो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो चुका होता है. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn." When the storm had stopped, Lancho went out of the house. He stood in the field and looked around. He told his sons that even a group of insects, which is where locust is mentioned, would not have damaged our crops so much. Because of hailstorm, everything has been destroyed. This year we will not be any corn for us. क्या होता है कि जब स्टॉर्म स्टॉप हो जाता है, ये जो तूफान आ रहा होता है ये सब बंद हो जाता है, तो लेंचो घर से बाहर जाता है, फील्ड के बीच में खड़ा होता है, चारों तरफ देखता है और अपने बच्चों से कहता है कि अगर लोकस्ट का अटैक भी हुआ रहता ना तो भी कुछ ना कुछ क्रॉप बच जाती, वो भी खाते तो पूरा कंप्लीटली ख़राब नहीं कर देते हमारी फसल को, कुछ तो बच जाता. लेकिन ये जो हेल स्टॉर्म था इसने सब कुछ ही बर्बाद कर दिया है और इस साल हम लोग के पास कोई क्रॉप बचेगी ही नहीं. The night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year. That night was full of sadness for them. Lancho said, "All our work has become a wastage. Nobody can help us now. We will be hungry this year." ये जो रात थी ना, जब ये पूरा हेल स्टॉर्म पूरा पड़ चुका था, इनका पूरा फसल डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो इन लोगों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा सैड मोमेंट था. वो रात बहुत ही ज़्यादा सैडनेस से भरी हुई थी. लेंचो क्या कहता है कि कहता है जितनी भी हम लोग मेहनत किए हुए थे ना सब बर्बाद हो गया. अब हमारी मदद कोई नहीं कर सकता है. इस साल तो हम भूखे मर जाएंगे.